Hello students. So today we will start lesson 8, Reach for the Top, from your book Beehive. Today we will read part 1, Santosh Yadav. Reach for the Top is a motivational story and it presents the journey of two successful women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. Both the women show that with determination and hard work, one can overcome all obstacles and achieve success. So, part 1 is about Santosh Yadav, a record holding mountaineer. Santosh Yadav was born in a very conservative society in Haryana where daughters had no freedom. But Santosh, with her will and dedication, took control of her life. As a result, she became the first woman to climb Mount Everest twice. Santosh Yadav is the only woman mountaineer in the world who has climbed Mount Everest twice. She is an incredible climber, an admirable human, and a sincere environmentalist. The Padam Shri, one of the top honors, was given to her in recognition of her achievements. She climbed Mount Everest first in 1992, then in 1993. So now, starting with the chapter. In the beginning, the students have been asked to share their favorites or their idols. What is the meaning of idols? Idols means the person whom you admire the most, the person whom you adore. Okay, I can share with you my previous experience when the students mentioned the name of Virat Kohli, MS Dhoni, our Reverend Prime Minister Narendra Modi, Dr. APJ Abdul Kalam, and some mention even the name of great singers or actors. Okay, students, so you also share your idols with me, your favorites with me. So, starting with the chapter, the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. Okay, so the only woman in the mount who climbed Mount Everest twice, she was born in a society, कहाँ पे हरियाणा में, where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो हरियाणा के ऐसा ये माना जाता है कि वहाँ पे डॉटर्स को वेलकम नहीं किया जाता. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्स? अ साइन ऑफ मिसफॉर्च्यून. तो संतोष यादव एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई जहाँ पे डॉटर्स का पैदा होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assumed that she wanted a son. तो एक बार जब उसकी मदर एक्सपेक्टेड थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, तो एक बार एक ट्रेवलिंग होली मैन, एक सेंट उनके घर पे आया, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन. तो वो उसको जब ब्लेसिंग दे रहा था उसने यही सोचा कि शी वुड वांट अ सन. बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they didn't want a son. पर सबको ये बहुत हैरानी हुई कि अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर ने बताया कि दे वांट अ सन. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. तो वो होली मैन भी ये सुन के बहुत हैरान हुआ. नेवरदीलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर भी उसने जो भी उसको रिक्वेस्ट करी गई थी फैमिली के द्वारा वो ब्लेसिंग दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनी? फेट. ओके, तो एज द डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क मीन्स कि उनके घर डॉटर पैदा हुई. संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स, अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. तो जिस फैमिली में पैदा हुई वहाँ पे ऑलरेडी 5 सन थे एंड शी वॉज द 6th चाइल्ड हु वॉज अ डॉटर चाइल्ड. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana.
ओके तो वो एक स्मॉल विलेज था जहाँ पे वो, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, जहाँ वो पैदा हुई थी। एंड द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो उसका नाम संतोष रखा गया जिसका मीनिंग सेटिस्फेक्शन या कंटेंटमेंट होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी जैसा कि उनकी फैमिली में ट्रेडिशंस चली आ रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन? दैट इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन बैक्स। ओके तो जो कुछ चला आ रहा था वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थी, उससे उसको संतुष्टि नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से ही उसने अपने टर्म्स पे, अपने कंडीशंस पे अपनी लाइफ जीनी शुरू करी। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। वहां पे दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी बट वो शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक she says now, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. तो जब वो पहले की पीछे की बात याद करती है तो क्या बताती है कि शुरू से ही वो काफ़ी डिटर्मिन्ड थी। ये उसने ये सोच रखा था कि अगर वो एक करेक्ट और रेशनल पाथ चूज करती है, रेशनल मतलब जो सोच समझ के लिया गया डिसीजन, ओके, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। ओके मीन्स कि अगर वो कोई सही काम कर रही है तो दूसरों को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रही है तो दूसरों को चेंज होना पड़ेगा, ना कि उसको।